वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। Please join everyone so we can start today's class. Today's topic is all about attitude के बारे में बात करेंगे, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए लाइव ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। So all those candidates who are joining in a very first time, my name is Anubhav Singh, and since last 11 years I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, IFMTR, UP government. Mentored and guidance more than 1000 plus candidates for UGC NET in Commerce, Management and Economics. Cracked the UGC NET JRF in our last few years. It has been 4 times in a Commerce and Management. Published more than 20 research papers in index journals like Scopus, Thomson Reuters, which here UGC listed. MBA International Business, MCOM International Business, MA Economics and PhD Applied Economics. तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। टॉपिक इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। व्हाट इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड। बहुत बहुत रेगुलर हम लोग सुनते हैं कि बहुत एटीट्यूड में रहता है, एटीट्यूड में रहती है, तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है चीज़ों की, किसी चीज़ के अगेंस्ट में, या बहुत निगेटिव एटीट्यूड है। तो व्हाट इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड एक क्या है कि एक जजमेंटल थिंग है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर पीपल्स के लिए, पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए हम लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हो सकता है उसी कंडीशंस में आप दूसरी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो और हम दूसरी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तो एटीट्यूड इज द इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, इज ए इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट और जजमेंट कंसर्निंग द ऑब्जेक्ट, पीपल्स और इवेंट। क्लियर। तो एटीट्यूड इज द इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट और जजमेंट concerning object, peoples or event. More precisely, attitude can be defined as a persistence tendency to feel, behave in a particular way towards some object, which may include event or individual as well as. क्या तो किस तरीके से हम लोग किस परिस्थितियों में कैसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी इंडिविजुअल्स के लिए, किसी इवेंट के लिए किस तरीके से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड्स। एटीट्यूड कैन बी कैरेक्टराइज इन अ 3 वे। 3 तरीके से हम एटीट्यूड समझाने की कोशिश करेंगे आपको। द फर्स्ट, टेंड टू परसिस्ट अनलेस समथिंग इज डन टू चेंज देम। ओके। सेकंड है एटीट्यूड कैन फॉल एनीवेयर along a continuum from very favorable to very unfavorable. And third, attitudes are directed towards some object about which a person has feeling, sometimes called affect and beliefs. So attitude is all about the evaluative statement or judgment concerning the object, people or event, how actually you are reacting or behaving towards particular objects, a particular event, a particular individual. That is all about the attitude. Attitude can be positive, attitude can be negative, totally depending on the certain circumstances, certain situation and certain individuals. How actually आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए टूवर्ड्स कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। बोले इंडिविजुअल्स की हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, किसी इवेंट की बात कर सकते हैं, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द टोटली इवेल्युएटिव और जजमेंटल थिंग।
An attitude is a hypothetical construct, and attitude is a hypothetical construct that represent an individual degree of like or dislike for an item. Attitude are generally positive or negative views of a person, place, things, or event. This is often refers to as an attitude object. People can also be conflicted or ambivalent towards an object, meaning that they simultaneously possess the both positive and negative attitude toward the items in a क्वेश्चन. तो एटीट्यूड इज टोटली एक हाइपोथेटिकल, एक परिकल्पना. इसको हाइपोथेटिकल को बोलते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस को. So an attitude is a hypothetical construct that represent an individual degree of liking or disliking for an item. So it's totally depending on the individual's liking or disliking, whether you are liking or disliking. It's totally depending on the individual to individuals, depending on the person to person. So attitude are generally positive or negative views of a person. किसी इंसान का ये positive और negative views हो सकते हैं. Place, things or event. This is often refers to as an attitude object. Clear? People can also be conflicted or ambivalent towards an object, meaning that they simultaneously possess both positive attitudes and negative attitude toward the items in a question. Further attitudes को define करेंगे हम लोग. Attitude can be होता नहीं ABC, affective, behavioral and cognitive. Evaluative statement or judgment concerning object, peoples or event. Yeah. Sorry. So attitude, it can be evaluative judgment. I have already told you concerning object, peoples or event. So it can be cognitive attitude, affective attitude or behavioral attitudes. We will talk about the affective components of attitude, the emotional or feeling segment of an attitude. So affective होता है, that is all about the emotional or feeling segment of an attitude, that is called affective. इसको हम लोग ABC मॉडल भी बोलते हैं, affective, behavioral and cognitive. So affective component is all about the emotional or feeling segment of an attitudes. We will talk about the cognitive components, the opinions or belief segment of an attitude. So how actually you are keeping the opinions of particular product and services. आपका belief क्या कहता है, आपका opinions क्या कहता है, that is all about the cognitive components. Behavioral components is all about the an intention to behave in a certain way towards someone or something. An intention to behave in a certain way towards someone or something. किसी पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट में, पर्टिकुलर चीज के टूवर्ड्स में कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, किसी के लिए या किसी चीज के लिए. तो दैट इज कॉल्ड ABC कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. अफेक्टिव इज ऑल अबाउट द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड. अब इमोशनली किसी अटैच होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज से, पर्टिकुलर ब्रांड से, पर्टिकुलर इंसान से, पर्टिकुलर इवेंट से, तो कहीं ना कहीं वो ना चाहकर भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उन पर्टिकुलर चीजों के अगेंस्ट में टूवर्ड्स में रहता है. बिहेवियरल में how actually you are behaving towards certain things or certain object or certain individuals. Cognitive is all about the intellectual skills की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं. That is all about the opinions or belief segment of an attitude. That is called cognitive. Clear? Without आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन एटीट्यूड को यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग दैट एन इंडिविजुअल होल्ड टुवर्ड्स हिज और हर जॉब, उसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में कुछ लोग जॉब सेटिस्फाई होते हैं. जॉब इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफाइंग विद द जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट, कंसिडरिंग परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू द सेल्फ वर्थ. ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग विद द जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड कंसिडरिंग परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू द सेल्फ वर्थ, दैट इज कॉल्ड जॉब इन्वॉल्वमेंट. अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की बात करते हैं एटीट्यूड्स के आगे रेफरेंस में, आइडेंटिफाइंग विद ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल एंड विशिंग टू मेंटेन रिलेशनशिप या मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. So firstly we have to be identified with a particular objective, and we have to be try to identify the goals of particular concern object organizations,
and wishing to maintain the membership in the organization. That is called organizational commitment. पहला आया थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस. कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर में भी हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस पढ़ते हैं. अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो कॉग्निटिव डिसोनेंस की अलग डिफिनेशन होगी. मार्केटिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कस्टमर है, कस्टमर ने जो भी परसीव किया था, कोई प्रोडक्ट खरीदने गए आप, प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपने जो परसीव किया था और व्हाट एक्चुअली यू हैव रिसीव्ड, तो व्हाट एक्चुअली यू हैव एक्सपेक्टेड और व्हाट एक्चुअली यू हैव रिसीव्ड, द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस. मतलब आपने सोचा था कि आपको अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने यूज किया तो आपने खरीदने से पहले आपने उसको एक आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोडक्ट इस तरीके से बिहेव करेगा, बट आफ्टर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको लगता है कि उस तरीके से प्रोडक्ट ने बिहेव या उस तरीके का प्रोडक्ट रिस्पॉन्स नहीं किया. तो द गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम, द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस and the what we call the what the value you have received, the gap between both of them, that is called cognitive dissonance. That is all about the consumer behavior के perspective से हम लोग बात करते हैं. भाई हम लोग अगर यहाँ पर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करेंगे एटीट्यूड के पर्सपेक्टिव से, any incompatibility between two or more attitudes or between behavior and attitude is called cognitive dissonance. So any incompatibilities between two or more attitudes, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का एटीट्यूड्स के या बिटवीन बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस. ठीक है. अब यहाँ पर मान लो दोनों लोगों का एटीट्यूड मैच नहीं कर रहा, उन दोनों के एटीट्यूड के बीच में जो गैप है, इनकम्पेटिबिलिटीज है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस. अब आया डिजायर टू रिड्यूस द कॉग्निटिव डिसोनेंस. किस तरीके से आप कॉग्निटिव डिसोनेंस को डिजायर टू रिड्यूस द डिसोनेंस, किस तरीके से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं. इंपॉर्टेंसी ऑफ एलिमेंट क्रिएटिंग डिसोनेंस. पहले आपको पता होना चाहिए किन कारणों की वजह से ए और बी दो इंसान है, इन दोनों के बीच में डिसोनेंस क्यों हो रहा है. डिसोनेंस मतलब डिससेटिस्फैक्शन या डिफरेंसेस इन एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस. तो इंपॉर्टेंसी ऑफ द एलिमेंट वी हैव टू बी फाइंड आउट द एलिमेंट, किस एलिमेंट की वजह से इन दोनों के बीच में डिसोनेंस हो रहा है. इसको बोलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंसी ऑफ एलिमेंट्स और क्रिएटिंग डिसोनेंस. तो पहले आपको जिस पर्टिकुलर चीज की वजह से, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की वजह से डिसोनेंस हो रहा है, फर्स्टली यू हैव टू बी फाइंड आउट दोस एलिमेंट और उसकी इंपॉर्टेंसी पता करनी पड़ेगी. सेकेंड है डिग्री ऑफ इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंसेस ओवर एलिमेंट. फिर आप देखेंगे कि एक इंडिविजुअल इंसान का उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर कितना इन्फ्लुएंसेस है. कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, कोई कम इन्फ्लुएंस होगा. तो डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस ओवर एलिमेंट होगा, उससे भी हम लोग अगर पता चल जाएगा तो हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम कर सकते हैं. फिर रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व इन डिसोनेंस. डिसोनेंस डिससेटिस्फैक्शन क्यों हो रहा है, इज देयर एनी सर्टेन रिवॉर्ड्स आर गिविंग टू बोथ द पार्टीज. तो दैट इज द थिंग कि डिजायर टू रिड्यूस डिसोनेंस किन किन कारणों की वजह से डिसोनेंस को कम कर सकते हैं. इंपॉर्टेंसी ऑफ एलिमेंट क्रिएटिंग डिसोनेंस, डिग्री ऑफ इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंसेस ओवर एलिमेंट, रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व इन डिसोनेंस. यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, किसी को कोई डाउट यहां तक. फर्दर द मेजरिंग द ए बी रिलेशनशिप. क्लियर. ए बी रिलेशनशिप मतलब एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप. क्लियर है. एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप.
measuring the AB relationship or attitude behavior relationship. Recent research indicate that attitude A significantly predict the behavior when moderating variables are taken into the account. तो यहाँ पर रिसेंट रिसर्च ने बताया है कि एटीट्यूड सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट द बिहेवियर, मतलब इजिली हम लोग एटीट्यूड से किसी इंसान के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं व्हेन मॉडरेटिंग वेरिएबल्स आर टेकन इनटू द अकाउंट। अगर हम लोग मॉडरेटिंग वेरिएबल्स को साथ में लेकर चलते हैं तो इजिली वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। एटीट्यूड से हम लोग किसी इंसान के बिहेवियर को पता लगा सकते हैं अगर मॉडरेटिंग बिहेवियर को साथ मॉडरेटिंग वेरिएबल को साथ में लेकर चलते हैं। तो व्हाट आर द दोस मॉडरेटिंग वेरिएबल्स वी हैव? तो पहला हो गया इंपॉर्टेंसी ऑफ द एटीट्यूड, specificity of attitude, accessibility of the attitude, social pressure of the individual, direct experience with the attitude. So what are the moderating variables? If these variables are combined, then what actually you can do, you can predict the behavior while talking about the attitude, while analyzing about the attitude. तो एटीट्यूड से बिहेवियर को हमको प्रिडिक्ट करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और हमने आपको कल तक की जितने भी 17 लेक्चर हो चुके हैं, जितने भी लेक्चर हुए हैं अभी तक की सभी की पीपीटी आप लोगों को भेज चुके हैं, जो पेड ग्रुप है उसमें, ठीक है। और नोट्स सब भेज दिए गए हैं और लगातार कंटिन्यू आपको नोट्स भेजते रहेंगे जो बच्चे भी पेड ग्रुप में ऐड ऑन है। क्लियर है? तो आगे आप आज जो समझ गए मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कौन है। फर्स्टली वी हैव टू बी एनालाइज या वी हैव टू बी नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंसी ऑफ द एटीट्यूड। एटीट्यूड की इंपॉर्टेंसी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड क्या है, सोशल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल्स क्या होगा, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द एटीट्यूड क्या होगा। दैट इज ऑल अबाउट द एबी रिलेशनशिप पता करने के लिए आपको अगर एटीट्यूड का बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है एटीट्यूड के साथ, तो यू हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट दिस मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। व्हाट आर दिस मॉडरेटिंग वेरिएबल्स? इंपॉर्टेंसी, specificity, accessibility, social pressure on the individuals, and direct experience with the attitude. And next, what is all about the self-perception theory? Attitude are used after the fact to make sense out of an action that already occurred. So attitude are used after the fact to make the sense out of an action that had already occurred. That is called self-perception theory. Clear? तो होता नहीं कि नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि इन एवरीडे लाइफ पीपल ऑब्जर्व अदर पीपल एक्शंस एंड बिहेवियर एंड मेक द इन्फ्लुएंसेस अबाउट अदर। एटीट्यूड बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑब्जर्व, एटीट्यूड बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑब्जर्व व्हेन पीपल सी हाउ द अनदर पीपल एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। व्हेन द पीपल सी, लोग देखते हैं कि हाउ द अनदर पर्सन एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। So they often attitude, the behavior is the person traits and attitude. Clear? That is all about the self perception theory कि कैसे आप परसेप्शन बनाते हैं दूसरे के लिए। कोई इंसान किन्हीं परिस्थितियों में किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल if you view someone in a park recycling a plastic bottle rather than throwing in the garbage, you might infer that individual is concerned about the individual. सीधी सी बात है, environment सॉरी। अगर आपको लगता है कि if you view someone in a park में कोई खड़ा हुआ है recycling a plastic bottle, suppose that recycling a plastic bottle, clear, rather than throwing it in the garbage, वो फेंकने के अलावा वो फेंक नहीं रहा है बॉटल को, रिसाइकिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, you might what actually you are thinking कि individuals is concerned about the environment, ठीक है। तो that is called similarity। if you witness a school child scolding at her child scolding at her
teacher, you might infer that she is upset or angry with the teacher interestingly. तो अगर कोई बच्चा किसी से परेशान है टीचर से, तो आपको लग सकता है कि बच्चे को देखकर कि टीचर से वो गुस्सा है या कुछ है. तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ परसेप्शन थ्योरी, हाउ एक्चुअली यू आर मेकिंग द परसेप्शन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स. That is called self-perception theory. Attitude are used often after the fact to make sense out of an action that already been occurred. कोई ऐसा कोई काम हो गया उसके बाद आप किसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड. आगे बात करें एप्लीकेशन एटीट्यूड सर्वे, ये क्या होता है? eliciting the responses from employees through questionnaires about how they feel about their job, work group, supervisors in the organization. एटीट्यूड सर्वे अगर हमको लेना है तो हम लोग रिस्पॉन्सेस ले सकते हैं क्वेश्चनियर फिल करवा के कि वो अपने जॉब, हाउ दे फील अबाउट देयर जॉब, वर्क ग्रुप, सुपरवाइजर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड सर्वे. तो मतलब जैसे कि 5 फॉर स्ट्रांगली अग्री, 4 फॉर अग्री, 3 फॉर अनडिसाइडेड और न्यूट्रल. You can put it down neutral. मतलब as per the Likert scale, you can take it down the attitude survey. 2 for disagree, 1 for strongly disagree. मतलब the company is pretty good place to work. आप 5 में से 1 से लेकर 5 तक रेटिंग दे सकते हैं. I can get hired in this company if I make the effort. The company wage rate are competitive with those of other companies. Employees promotion decisions are handled fairly. I understand the various fringe benefit the company offers. My job make the best use of my abilities. My workload is challenging but not burdensome. I have trust and confidence in my boss. I feel free to tell my boss what I think. I know what my bosses expect to me. तो इसको नॉर्मली आप 5 4 5 4 3 2 5 4 3 2 ऐसे रेटिंग दे सकते हो. अब आया एटीट्यूड एंड वर्क फोर्स डाइवर्सिटी. व्हाट इज ऑल अबाउट द वर्क फोर्स डाइवर्सिटी? So training activities that can reshape the employer's attitude concerning about the diversities. तो डाइवर्सिटीज मतलब अलग अलग रेस के, अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग स्किल्स के लोग जॉब करते हैं. तो ट्रेनिंग एक्टिविटीज दैट कैन रिसेप द एम्प्लॉयज एटीट्यूड्स कंसर्निंग अबाउट द डाइवर्सिटीज. अगर हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो दैट माइट रिसेप द एम्प्लॉयज एटीट्यूड कंसर्निंग अबाउट द डाइवर्सिटीज. पहला participating in a diversity training that provide for self evaluations and group discussions. participating in a diversity training हमको provide करनी चाहिए, provide for जो आपको अपने self evaluations और group discussion के बारे में बताएगी. volunteer work in a community and social service center without individuals of diverse background. volunteer work in a community and social service center without individuals of diverse background. नेक्स्ट हो गया एक्सप्लोरिंग द प्रिंट एंड विजुअल मीडिया दैट रिकाउंट एंड पोर्ट्रे डाइवर्सिटी इश्यूज. तो ऐसे कुछ हम लोग प्रिंट और विजुअल मीडिया के थ्रू कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे जो एक डाइवर्सिटी इश्यूज ओवरकम कर सकते हैं. तो एटीट्यूड एंड वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को अगर आपको कम करना है तो एटीट्यूड कैसे आपका वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं. अगर आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो ट्रेनिंग एक्टिविटीज दैट कैन रिसेव एम्प्लॉयज एटीट्यूड concerning the diversity. Clear? ये हम आपको एचआर में बता चुके हैं. जॉब सेटिस्फेक्शन ये नहीं बताएंगे यहां पे. आगे हम लोग बताएंगे कि अब फर्दर हम लोग बात करते हैं कि और हमने डिफाइन किया एटीट्यूड को कि एटीट्यूड और जजमेंट दे डेवलप ऑन द एबीसी मॉडल अफेक्ट बिहेवियर एंड कॉग्निटिव. द अफेक्ट रिस्पॉन्स इन इमोशनल रिस्पॉन्स दैट एक्सप्रेस इन इंडिविजुअल डिग्री ऑफ प्रेफरेंस फॉर एन एंटिटी. द बिहेवियरल इंटेंशन इज अ वर्बल इंडिकेशन और टिपिकल बिहेवियरल टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल. फिर कॉग्निटिव की बात करते हैं. द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स इज अ कॉग्निटिव इवैल्यूएशन ऑफ एंटिटी दैट रिजल्ट ऑफ ईदर डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशनल. इसके 4 फंक्शन होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे आपको बताएंगे. ठीक है, एटीट्यूड तो आपको समझ में आ ही गया होगा.
कि it can also be defined a complex mental state involving belief and feeling and values and disposition to act in a certain way. For example, if someone says that I like my job, the statement expresses his attitude towards his job. और कोई बोला I like my job, this statement expresses his attitude towards his job. ये हम आपको पहले बता चुके, दोबारा बता दें. 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड और कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल. कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल. Cognitive component of attitudes refers to the opinions or belief part of attitudes. When you form your opinions or judgment on the basis of available information that decide whether you have favorable or unfavorable opinions on that, it is the cognitive part of attitude we are talking about. तो cognitive components होता है कि आपने अपना opinions और beliefs बना लिया part of the attitude. आपने अपना opinions जजमेंट बना लिया on the basis of available information. जो भी एक information available है उसके basis पर you are judging the individuals, you are judging the event, you are judging the things. So you have उसके बाद you have a favorable or unfavorable opinion on that. It is the cognitive part of attitude we are talking about. अफेक्टिव कंपोनेंट की बात करेंगे. अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिफर्स टू द इमोशनल एस्पेक्ट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर. इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड, this is perhaps the most often referred part of attitude and decide mostly the desirable or undesirable aspect of attitude. भाई behavioral की बात करते हैं. Behavioral component of attitude refers to the behavioral part of attitude. If we have a positive attitude for a particular object, it is likely to be translated in a particular type of behavior, such as buying or procuring that object. तो behavioral how actually you are behaving, आप किस तरीके से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ, पर्टिकुलर थिंग की तरफ, इंडिविजुअल की तरफ आप बिहेव कर रहे हैं. तो जिस तरीके से बिहेव करेंगे उसी तरीके का आपका एटीट्यूड होगा, वेदर इट्स ए पॉजिटिव और निगेटिव. अब आया फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 100% क्वेश्चन इससे पूछा जाता है नेट में भी और आपका आरपीएससी में पूछा जाएगा. यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए. According to the CATS, attitudes serve 4 important functions from the viewpoint of organizational behavior. These are as follows: the adjustment functions, ego defensive functions, value expressive functions, and the knowledge functions. कोई डाउट यहां तक आप लोगों को? Further, the functions of attitude, we have 4 functions according to the CATS, KATZ. Attitudes serve 4 important functions from the viewpoint of organizational behavior. These are as follows: the adjustment function, ego defensive, value expressive, knowledge function. पहला है द एडजस्टमेंट फंक्शन. एटीट्यूड ऑफन, नाम से समझ में आ रहा है कि एडजस्टमेंट करना है आपको. एटीट्यूड ऑफन हेल्प पीपल टू एडजस्ट टू देयर वर्क इन्वायरमेंट. एक इंसान का एटीट्यूड ही होता है जो इंसान को मदद करता है, एक इंडिविजुअल इंप्लॉयज को मदद करता है कि वो अपने वर्क इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट कर ले. व्हेन एम्प्लॉयज आर वेल ट्रीटेड, जब इंसान को, एम्प्लॉयज को हम बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, व्हेन एम्प्लॉयज आर वेल ट्रीटेड दे आर लाइकली टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड. जब इंसान को, एक एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, दे आर लाइकली टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल सी बात है, जब इंसान को अगर ठीक तरीके से ट्रीट करेंगे तो वो अच्छी तरीके से क्या करेगा, उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहेगा टूवर्ड्स मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन एम्प्लॉयज आर क्रिटिसाइज, व्हेन एम्प्लॉयज आर क्रिटिसाइज एंड गिवन ए मिनिमम सैलरी, जब उसको एक मिनिमम सैलरी देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, दे आर लाइकली टू डेवलप ए नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल सी बात है ये. These attitudes helps employees
adjust to their environment are a basis for future behavior. The adjustment function direct people towards pleasurable and rewarding object and away from unpleasant and undesirable ones. Simple है. It serves the utilitarian concept of maximizing reward and minimizing the punishment. Thus, the attitude of consumers depend to a large degree of their perception of what is needed, satisfying, and what is punishing. तो एटीट्यूड का मतलब एडजस्टमेंट फंक्शंस का है कि आप अपने एटीट्यूड को किस तरीके से वर्क इन्वायरमेंट के साथ उसका एडजस्ट कर रहे हैं. सब उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा. सब बेकार तरीके से ट्रीट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे एम्प्लॉयज को, तो उनका निगेटिव एटीट्यूड होगा. यही एटीट्यूड एक मदद करता है. दिस एटीट्यूड हेल्प द एम्प्लॉयज एडजस्ट टू देयर एनवायरमेंट, कि आप फ्यूचर में कैसे बिहेव करना है आपको. इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब की वजह से आप फ्यूचर में कैसे बिहेव करना है, एटीट्यूड आपका पता चल जाता है. द एडजस्टमेंट फंक्शन डायरेक्ट पीपल टुवर्ड प्लेजेबल एंड रिवॉर्डिंग ऑब्जेक्ट एंड अवे फ्रॉम अनप्लेजेंट एंड अनडिजायरेबल वंस. दैट इज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट फंक्शन. अब बात करेंगे ईगो डिफेंसिव फंक्शन. सेकंड है ईगो डिफेंसिव फंक्शन. द ईगो डिफेंसिव फंक्शन refers to the holding attitude that protect our self-esteem or that justify action that make us feel guilty. The ego defensive function refers to holding attitude that protect our self-esteem or justify action that make us feel guilty. This function involve psychoanalytic principles where people use defense mechanism to protect themselves from psychological harm. For example, इसमें एक एग्जाम्पल जब समझने की कोशिश करिए कि एक ओल्डर मैनेजर, एक पुराना मैनेजर है, whose decisions are continuously challenged by a younger subordinate managers, may feel that the latter is brash, cocky, immature and inexperienced. In truth, the young subordinate may be right in challenging the decision, but the older managers may not be very effective leader and may constantly make poor decision. On the other hand, the older manager is not going to admit this, but will try to protect the ego by blaming the other party. समझ गए? तो ईगो डिफेंसिव में अपनी ईगो को डिफेंस कर रहे हैं, ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की हमने आपको कि एक ओल्डर मैनेजर जिसके डिसीजंस लगातार कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहा है, किए जा रहे हैं, बेकार डिसीजंस हैं. जो यंगर सबऑर्डिनेट्स है, जो नया एक यंग मैनेजर है, वो लगातार उसको लगता है कि जो ओल्डर मैनेजर है उसके डिसीजन खराब हैं, कंपनी के लिए खराब है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए खराब है. बट उसके बाद भी ओल्डर मैनेजर उन बातों को एडमिट नहीं करता. ओल्डर मैनेजर माइट नॉट बी वेरी इफेक्टिव लीडर, उसके और पुअर डिसीजन कर रहा है, पुअर डिसीजन ले रहा है, उसके बाद भी ओल्डर मैनेजर इज नॉट गोइंग टू एडमिट दिस बट विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द ईगो. वो अपनी ईगो को डिफेंस कर रहा है, ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा है. इसको बोलते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन. क्लियर? वैल्यू एक्सप्रेसिव. Whereas the ego defensive attitude are formed to protect a person's self image. उसमें हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं सेल्फ इमेज को. Value expressive attitude enable the expression of the person's centrally held values. Central values tend to establish our identities, gain us social approval, thereby showing us who we are and what we stand for. तो एक होता नहीं कि वैल्यू एक्सप्रेसिव है हम लोग. तो वेयर ईगो डिफेंसिव आप प्रोटेक्ट की बात करते हैं, सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं. बट वैल्यू एक्सप्रेसिव एटीट्यूड करते हैं, जो सेंट्रली हेल्ड वैल्यूज होती हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं. तो सेंट्रल वैल्यूज टेंड टू एस्टेब्लिश अवर आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाते हैं, एंड गेन अस सोशल अप्रूवल, एक सामाजिक अप्रूवल मिलता है. देयरबाय शोइंग अस हु वी आर एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर. हमको पता है हम लोग कौन, हम लोग किसके लिए बने हैं. अगर आपको पता है कि यू आर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो सोसाइटी को सर्व करने के लिए बना है, तो आपको अपनी टाटा है, टाटा का मेन काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रहता है, टू सर्व द सोसाइटी रहता है. तो आपको पता होना चाहिए कि हु वी आर, व्हाट वी स्टैंड फॉर. आपको पता है कि यू आर बेसिकली फॉर, नॉट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट बेसिकली फॉर टू सर्व द सोसाइटी. तो दैट इज कॉल्ड, आपको अपनी सेंट्रली वैल्यू हेल्ड, सेंट्रली जो वैल्यूज हैं, सेंट्रल वैल्यूज हैं, उनके अनुसार आपको काम करना चाहिए. तो सम एटीट्यूड आर इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन बिकॉज दे एक्सप्रेस वैल्यू दैट आर इंटीग्रल ऑफ दैट पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट. Therefore, consumer adopt certain attitude to translate their values into something more tangible and easily expressed. Our value expressive attitude are closely related to the self concept. भाई self concept खुद के नजरिया के अनुसार हम लोग काम करेंगे, क्या सही है क्या गलत है. On one whose central values is freedom, the individuals may express very positive attitude toward the decentralization of the authority in the organization, flexible work schedule and relaxation of the dress standard.
तो कहीं ना कहीं एक जिसकी सेंट्रल वैल्यू फ्रीडम है, एक इंडिविजुअल एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड अपना दिखाता है कि एक अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइज कर दिया, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल कर दिया, ड्रेस शेड्यूल में या ड्रेस स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन दे दिया। तो दैट इज ऑल अबाउट द वैल्यू एक्सप्रेसिव। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों हो, हु वी आर, हम कौन है, व्हाट वी स्टैंड फॉर। लास्ट हो गया द नॉलेज फंक्शन। The knowledge function refers to our need, which is consistent and relatively stable. This allows us to predict what is likely to be happen. This allow us to predict what is likely to be happen. So give us a sense of control. हमको पता चल जाता है कि predict कर लेते हैं क्या होने वाला है, तो इसको give us a sense of control. Some attitude are useful because they help to make the world more understandable. They help people describe causes to event and directs attention towards features of peoples and situations that are likely to be useful in making sense of them. Consequently, they help to make the world more understandable. उनकी कोशिश रहता है कि दुनिया बहुत ज्यादा थोड़ी मेक मोर अंडरस्टैंडेबल, प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए और नोवेल मतलब जानकारी। Knowing a person attitude help us predict their behavior. For example, people who are not familiar with nuclear energy, peoples who are not familiar with the nuclear energy may develop an attitude that is dangerous and should not be used as an energy source. कुछ ऐसे लोग जो उनको लगता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी के फेमिलियर नहीं है, उन वो लोग ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि दैट इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक, और इसको हम लोग एज ए एनर्जी सोर्स यूज नहीं करना चाहिए। तो दूसरा स्टीरियोटाइपिंग इज अनदर एग्जांपल, जिसकी वो संकुचित सोच होती है, नैरो थिंकिंग होती है, वो भी एक नॉलेज फंक्शन का स्टीरियोटाइपिंग इज अनदर एग्जांपल। In the absence of knowledge about a person, we may use a stereotype attitude for judging the person. तो अगर आपको पर्टिकुलर चीज की नॉलेज नहीं है तो भी में यूज है स्टीरियोटाइप एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड आपका किसी इंसान को सही तरीके से जज नहीं कर पाएंगे। तो द नॉलेज फंक्शन रिफर्स टू अवर नीड विच इज कंसिस्टेंट एंड रिलेटिवली स्टेबल। दिस अलाउ अस टू प्रेडिक्ट, एक नॉलेज ही हमको प्रेडिक्ट अलाउ करती है टू प्रेडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन, सो गिव अस अ सेंस ऑफ कंट्रोल। दैट इज ऑल अबाउट द नॉलेजेबल फंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बताइए कोई डाउट हो आप लोगों को? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Anyone is having any doubt, please do tell me. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू टेल मी, अदरवाइज वी हैव टू बी कंक्लूड टुडेस क्लास। चलो, once again thank you so much for joining बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।